Hello and welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial, जहाँ पे आज this particular strategy is for those students जो कि self study कर रहे हैं। अब self study करने के साथ साथ अगले 3 महीने में हम क्या ऐसा कर लें कि हमारे को हमारा dream law school मिल जाए under the common law admission test. So we have divided this into 3 steps because we have almost 3 months left. Step 1 is where we identify our errors and we start building upon our reading capability. Now obviously self study करने वाले भी 2 टाइप के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत देर से self study कर रहे हैं, ऐसे जो कि अभी से शायद शुरू करके बैठे हैं. I'm going to cater to both of them. So reading speed, reading capacity, identifying errors in the very first month, very, very important. The second one is then वो एरर्स को हम किस तरीके से ठीक करें, बार बार सेक्शनल्स करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अंडर टाइम्ड कंडीशंस, ताकि हमारी वो मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट ना हो. एंड फाइनली टेस्ट डे परफॉर्मेंस हमारी मैक्सिमाइज हो जाए. सो इन पूरे 3 महीने में रट्टे से ज़्यादा हमने फोकस करना है ऑन आर एरर्स दैट वी मेड इन द पास्ट, दैट वी कंटिन्यू टू मेक टिल नाउ, एंड हाउ टू इंश्योर दैट वी डोंट make it on the day of the examination, right? So phase 1 would be first day 1 से लेके day 45, जिसमें of course 45 minutes of mandatory reading of the Hindu or the Indian Express. Obviously एक particular passage को not more than 5 to 6 minutes लगने चाहिए, लेकिन anyone who's starting right now might take more time, which is fine. Please keep it in mind that you have to reduce that type of time because you will have a 450 words के passage there. अब editorials में कभी 450 से ज़्यादा भी होते हैं, कभी उससे कम भी होते हैं, तो उस हिसाब से आपने देखना है कि आपको कितना समय लग रहा है उसको ना ही सिर्फ पढ़ने के लिए बट समझने के लिए, right? You have to master certain concepts of certain sections such as definitely analytical reasoning, quant, right, critical reasoning as well as legal reasoning के बहुत ही basic quintessential ऐसे core topics जो कि tort, contract, constitution, criminal law ऐसे type के, right? Obviously थोड़े से unconventional type के topics भी आने लग गए हैं, लेकिन the best thing about legal reasoning is कि if at all they are writing anything, even if it is murder, they will define what is murder, right? They will give you the essentials of it. They will give you the exceptions. They might not give you all the essentials and they might ask you to answer it on the basis of that. So वैसे भी आपकी जो understanding है of that particular topic will amount to nothing if it has been defined in another way. Then you have to stick to that particular thing. लेकिन क्या है ना कि ऐसे टाइप के शब्द जैसे notwithstanding या फिर विस मेजर या वाइकैरस लाइबिलिटी या रेसिप्सा लिक्विटोर, ये देख के हमें थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे हो जाता है कि भाई ये क्या बोली जा रहे हैं. तो इसीलिए जिस वजह से थोड़ा सा अगर आपको उसके बारे में पता हो तो लाइफ विल बिकम very very easy for you. You should be taking at this point of time 1 से 2 मॉक्स आपको लेने चाहिए. मेरे को तो लगता है कि 2 मॉक्स आपको डेफिनेटली करने चाहिए. मॉक्स देना बहुत ज़रूरी, लेकिन उसके बाद बैठ के उसको रियलाइज करना कि कहाँ पे आप और मार्क्स लेकर आ सकते थे, कहाँ पे आप ये नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते थे, किस तरीके से आप अपने अटेम्प्ट और बढ़ा सकते थे. बेसिकली द एनालिसिस शुड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. द अमाउंट ऑफ time that you're taking for the mock, which is 120 minutes, more than that you should be taking for analyzing that particular mock. But what we do is we do the entirely opposite चीज़. हम 120 मिनट के लिए mock देते हैं और हार्डली 30 मिनट्स के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम उसका कुछ नहीं करते. दैट इज बेसिकली दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम. ना हाउ टू किल योर एरर्स इन एवरी सेक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल इन लीगल या फिर लॉजिकल रीजनिंग, फॉर दैट मैटर इवन इन इंग्लिश, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉजिकली करेक्ट लग रही है आपको अकॉर्डिंग टू वट एवर इज रिटन इन द क्वेश्चन, लेकिन इट इज़ नॉट देयर इन द पैसेज, वो इन्फॉर्मेशन पैसेज में है ही नहीं, आप अपने आप समझ के बैठ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपको क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या है. नहीं, दे आर आस्किंग यू अबाउट द ऑथर एंड दैट मीन्स यू हैव टू स्टिक टू वट एवर द ऑथर हैज सेड, राइट, इन बोथ लीगल एज वेल एज लॉजिकल. लीगल में ये भी देखना चाहिए कि आर यू गेटिंग टू इमोशनली इन्वॉल्व. इन केस यू आर डूइंग दैट, अगेन यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव एरर. डोंट डू इट, राइट. English comprehension में, especially when there are too many facts that have been written, random names, Greek literature, ऐसे बड़े बड़े fancy चीज़ें जो कि समझ नहीं आ रही, या philosophy वाला है,
तो क्या होता है ना कि पहले अगर सवाल पढ़ लो और उस हिसाब से फिर दोबारा से जाके उसको पैसेज को देखो, इसके बजाय कि 2-3 बार पैसेज पढ़ लो जस्ट टू अंडरस्टैंड इट, फिर जाके सवाल करो, ये मत करना, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम इन दैट सेंस। देन इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना, एक ही सोर्स रखना है, सोर्सेज के बारे में हमने बार बार बात की है। यू शुड इन्वेस्ट इन एटलीस्ट वन लेजिट सोर्स फॉर जीके, whatever that may be. That could be a CLAT magazine, that could be a CLAT series that you can figure out. If you don't want to do anything else, you can stick to GK filter, life will be sorted. Then is Quant DI, राइट? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली उसमें दो चीज़ें हो सकती है, या फिर तो हमें डर लगता है या फिर हमारा कैलकुलेशन हो जाती है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके ऊपर देन यू हैव टू मास्टर दिस डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड बेसिक चीज़ें आपको मेंटली कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको ना पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े, आपके दिमाग में वो कैलकुलेशन हो जाए, ऐसे टाइप की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड 3 months आर इनफ फॉर इट। सो लास्ट स्टेज वुड बी टेपर। सो you see what you can do is फर्स्ट मंथ में तो 1 से 2 मॉक्स बोल दिए। अब मंथ 2 को हमने 2 फेजेस में कन्वर्ट कर लिया। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मंथ 2 फर्स्ट 2 वीक्स हमने 2-2 या 3-3 मॉक्स कर लिए, एंड इन द लैटर हाफ ऑफ मंथ 2 यू कैन गो टू लाइक 1.5 का मतलब ये है कि एक पूरा मॉक और फिर बाकी सेक्शनल्स के तौर पे करो, ठीक है? एंड देन ऑफ कोर्स वन मॉक, बिकॉज यू हैव टू टेपर इट, बिकॉज यू हैव टू हैव योर माइंड शुड बी फ्रेश बाय द एंड ऑफ इट। यहाँ पे बैठ के 3-4 मॉक्स करने मत लग जाना, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्केडियन रिदम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 2 से 4 बजे यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ना। सो यू हैव टू फिगर आउट आपने कितने बजे सोना है, कितने बजे लास्ट मील करना है। लास्ट मील इन द सेंस खाना खाना है, नॉट योर लास्ट मील, राइट? एंड what is your particular way of going into a examination? Do you sit with yourself for some time? Do you meditate for some time? Do you talk to a friend? Please don't do that, because it's just going to be a nervous no, communication that will just increase the panic mode even more. If you want to talk to somebody, talk to your parents, talk to yourself, that's the best part, right? Or talk to your god. Right? I'm just telling you things that you can do. You have to figure it out, and you have to figure it out right now only. कुछ बच्चे थोड़े ऐसे पार नैप टाइप का भी ले लेते हैं, पर पार नैप मतलब अगर मेरे जैसा ले ले तो फिर तो मैं उठूँ ही ना, तो फिर you have to figure out what works for you, right? सो क्या क्या करना है आपने? 5 साल के PY प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। आपके पास एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 15 हाई क्वालिटी मॉक्स होने चाहिए। मैं तो कहती हूँ अगर 40 मॉक्स कर सकते हो ये इन पूरे 3 महीनों में, तो बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी वालों को इस चीज़ में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इफ़ यू हैव अदर वेज टू गेट इट, I don't know, do that, but definitely do it, right? One monthly GK compendium, that is zarur something that you require, because well, it helps you in revision also, and it helps you in the sense that of course increases your reading speed and reading stamina. And if you're able to do all of this, it works. Please avoid any passive video lectures right now, right? So you don't understand the concept and you want to go and watch a video lecture, be my guest. But if you're just going to be like, अच्छा ठीक है यार, देखना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ये फलानी कोचिंग को अभी ज्वाइन किया है, इसके इतने सारे वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, ये तो मुझे कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, मैं कहती हूँ वो वाले टाइम पे ना और क्वेश्चंस कर लो। नहीं समझ में आएगा तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो लेक्चर देखो, rather than wasting the last 3 months on just watching lectures, right? Thank you very much. I'll see you guys soon with another strategy video.